Yeah, so greetings, welcome back to my channel. My name is Om Kumar, and today I'm gonna explain how acting and how casting calls works in Mumbai. So especially this video is gonna be very important if you are living in Mumbai. And if you're not living in Mumbai, if you're living out from Mumbai, this video is also gonna help you a lot because I'm gonna explain how online casting works and how can you audition if you are living far from Mumbai. So stay tuned and don't miss any part of the video because if you do, then it's going to be a very hard thing for you to understand. So let me tell you how many types of audition there are in the market. First of all, you have their profile. First thing first, profile. Profile comes in video or short clips or in the format of reel and in the format of pictures. Pictures सबसे पहले pictures होते थे as a profile. पहले जो actors होते थे वो अपनी photos ले जाके to the production houses and to the directors वो दिखलाते थे कि सी दिस इज माई फोटो एंड आई लुक लाइक दिस, यू कैन कीप दिस फोटो एंड इफ़ मेरे लिए आपके पास फ्यूचर में कोई काम हो सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी. तो वही प्रोफाइल आज के ज़माने पे इवॉल्व हो गई. इट बिकेम एन इंट्रो. सो व्हाट इंट्रो इज़: हेलो, माय नेम इज़ ओम कुमार, आई एम इतना मीटर टॉल, इतना मीटर शॉर्ट, माय एज इज़ दिस, आई लिव हियर, आई हैव अ हॉबी इन दिस 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 एंड दीज आर माय प्रोफाइल्स. So this is a short intro, not a short intro. Short intro is where you only show your profile and your name, not even your contact informations. And an intro is basically which includes everything about you. So in a profile which only includes your photos and how you look, and intro which includes your introduction, and then comes audition. Audition is the main and the last part of any kinds of audition, of course, because it's chase audition. Audition means you have to play a particular character in a video for 4 to 5 minutes or even less than that, like 2 minutes or 4 minutes. Then you have to send that video to those people who are judging you by that video. So first intro, my bad, first profiles, then intro, then audition. 90% of the people what they do, जब वो लोगों को अप्रोच करते हैं, दे सेंड्स देयर ऑडिशन. लाइक सबसे पहले वो ऑडिशन ही भेज देते हैं, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग. क्योंकि अगर आपके ऑडिशन में थोड़ी सी भी कमी होगी वो पकड़ लेंगे, आपका ऑडिशन कितना भी परफेक्ट क्यों नहीं हो. जस्ट इमेजिन इफ आई एम अ पर्सन, आई एम लुकिंग फॉर अ कमेडियन एज अ कैरेक्टर, और आप मेरे को कि कोई सैड सा ऑडिशन या फिर कोई विलन का ऑडिशन भेज दो, तो दैट इज गोना कट इट. सो ऑलवेज ट्राई योर बेस्ट टू रीड द फ्रंट पीपल जिससे आप बात कर रहे हो. Then it comes to how to approach casting directors or how to approach production houses. So this is a very important topic, so listen carefully. I'm making this video very fast forward ताकि मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूँ कोई लेंदी सा सवाल या लेंदी सा चीज़ बताने में. And I'm gonna try my best कि वीडियो शॉर्ट हो. And yeah, of course. So what did I miss? Yeah, how to approach casting directors or production houses. You have to approach those kinds of casting directors because casting directors are the people who also like cast for movies, short films, then music videos, then serials, then web series, all kinds of things. तो पहले आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि आपको क्या करना है. You have to do television, you have to do live televisions, you have to do reality shows, you have to do movies, you have to do web series, what you want to do. अगर आपको वो पता चल गया, उसके नीश के अकॉर्डिंग आप कास्टिंग डायरेक्टर्स को पकड़ो. इट्स जस्ट लाइक वन वे हाउ टू फाइंड इट. जब भी आप कोई मूवीज़ देखते हो या फिर तब भी आप कोई वेब सीरीज़ या कुछ भी देखते हो, एट द एंड ऑफ द मूवी और दैट वेब सीरीज़ देयर इज़ अ क्रेडिट रोल. आप उस क्रेडिट रोल में अगर आप थोड़ा सा वेट करके कोई पढ़ोगे उस क्रेडिट रोल को, सो वहाँ पे जो जिस जिस बंदे ने कास्टिंग किया है या फिर जिस टीम ने कास्टिंग किया है, उनका नाम एंड उनका सारा इन्फॉर्मेशन रहता है. तो वो चीज़ आप फिर गूगल्स में सर्च करके आप पता लगा सकते हो कि हाउ टू कॉन्टैक्ट देम. यू कैन फाइंड देयर जीमेल, यू कैन फाइंड देयर वेबसाइट, और अगर किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस ने ही कास्टिंग किया है तो फिर आपको उसका कोई पर्टिकुलर ऐप या फिर वैसा भी कुछ मिल सकता है. So this is one way. There are many way. I'm not gonna explain all the ways क्योंकि ये वीडियो लेंदी हो जाएगी फिर. So this is how you can spot your best casting director. जिस जैसे आपको काम चाहिए वैसे चीज़ें देखो, उसके क्रेडिट रोल में आपको वो मिल जाएंगे. Then it comes how to approach production houses. Production houses के सारे production houses के websites होते हैं, Gmails होते हैं, आप वो find out करो and only send your intro
don't send your audition, absolutely don't pitch your audition in the beginning of the chat. आप अगर किसी को भी बात कर रहे हो, किसी को भी आप जीमेल कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आपने अपने बारे में ए टू जेड चीज़ें बता के आप भेज दिया कि मैंने ये किया, ऐसा ऐसा। ओके, वर्क लिंक इज़ फाइन, बट डोंट सेंड योर ऑडिशन इतनी जल्दी। अगर वो सामने से मांगे कि दिस इज द कैरेक्टर, आई वॉन्ट यू टू प्ले इट एंड देन सेंड मी द ऑडिशन, देन इट्स योर ग्रीन फ्लैग टू सेंड योर ऑडिशन। ऐसे अगर वो बोले कि ओके सेंड मी योर इंट्रो, सेंड मी योर वर्क लिंक, सेंड मी योर पास्ट वर्क्स, देन आप वो जो मांगे आप तब दो। आप अपने तरफ से आप अपने तरफ से ओवर बन के आप सामने से दोगे तो इट्स गोना रिड्यूस योर चांसेस ऑफ बीइंग इवन हैविंग अ प्रॉपर कम्युनिकेशन विद देम। सो आप अपने तरफ से कुछ ज़्यादा मत करो। इफ़ यू वांट अ पिच, नाम, बायो, हाउ यू वेंट इनटू दिस इंडस्ट्री, विच मीन्स आपने पास्ट में क्या काम किया नहीं किया है, देन योर इंट्रो, then a portfolio, if you could add your portfolio like your photos, प्रोफेशनल फोटोज ऑफ कोर्स, आप वो भेजो कास्टिंग डायरेक्टर्स को, प्रोडक्शन हाउसेस को, दैट इज़ इट। अगर आपको पसंद आए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो भीड़ बहुत होती है इन प्रोडक्शन हाउसेस। कास्टिंग डायरेक्टर्स चेक्स देयर मेल ट्वाइस और थ्राइस इन वीक्स, जितनों को मैं जानता हूँ, ट्वाइस और थ्राइस अ वीक। सो आप ऐसा आपको आज मेल किया, कल आपको रिस्पॉन्स नहीं आएगा उसका। बट फॉर द प्रोडक्शन हाउसेज महीने में एक बार या फिर मुश्किल से 2 बार। सो प्रोडक्शन हाउसेज में आप यू हैव टू वेट फॉर अ लॉन्गर टाइम कंपेयर टू कास्टिंग डायरेक्टर्स। देन वो आपको रिप्लाई करेंगे, देन यू हैव टू सेंड आगे का प्रोसीजर। आप ऐसे ही एक ही बार सब कुछ मत भेज दो, इट्स अ वेरी बैड थिंग एंड दिस गोना रिड्यूस योर चांसेस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड और इवन अ पर्सन जिससे वो बात कर पाए। सो दिस इज द प्रोसेस। उसके बाद हाउ टू कम फॉर ऑडिशन। ओके, अगर आप सेलेक्ट हो गए हो, अगर आपको वो ऑडिशन के लिए बुलाए, तो अब यहाँ तक का जो प्रोसीजर था ये ऑनलाइन, सिर्फ ऑनलाइन, नॉट ऑफलाइन, सिर्फ ऑनलाइन का था। आप इंडिया में कहीं भी बैठ के वर्ल्ड के किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर को अप्रोच कर सकते हो थ्रू अगर आप उनके मेल देख रहे हो, अगर आपके पास उनका जीमेल है, आप वर्ल्ड के किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर, वर्ल्ड के किसी भी प्रोडक्शन हाउसेस को अप्रोच कर सकते हो घर बैठे थ्रू ऑनलाइन। It's a very convenient way, and most of the casting director also like this way than meeting thousands of people every day. Then it comes for offline auditions. This is a very lengthy part. So offline auditions दो तरीके के होते हैं. The first one is open audition, the second one is invite only. In open audition एक कास्टिंग ऑफिस को एक मिलता है कि हमें ऐसे ऐसे कैरेक्टर चाहिए एंड दे सेंड्स इट टू एवरीबडी कि आज इस टाइम पे यहाँ पे ऑडिशन होने वाला है, दिस आर द कैरेक्टर, दिस इज द अटायर जिसमें आपको आना है। एंड वहाँ पे 150, 200, 500, 1000, 2000 जितनों के पास पहुँच सकता है, देयर इज नो मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट, जितनों के पास पहुँच सकता है सारे लोग आ जाते हैं कास्टिंग हाउस में। एंड देन इट्स अ मेस। वहाँ पे कुछ ढंग से नहीं होता है, कोई जज नहीं कर पाता है कौन अच्छा है कौन बुरा है, बस वो फोटोज़ लेते हैं। और आई थिंक जो जमे अगर 500 लोग हैं तो 500 में अगर शुरुआत के 15 में ही अगर उनको मिल जाए उनके अटायर के, तो वो बाकी के लोगों को देखते भी नहीं है। आई हैव सीन दिस थिंग, आई हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग। मैं बैठा हूँ कास्टिंग हाउसेज में एंड मैंने एक्सपीरियंस की है ये चीज़ें। सो ओपन ऑडिशन, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सिर्फ ओपन ऑडिशन दे दे के ही आपको कोई बड़ा रोल मिल जाएगा टू लैंड, इट्स अ वेरी बैड थिंग। आपको यू हैव टू पिच योर सेल्फ टू कास्टिंग डायरेक्टर्स थ्रू देयर जीमेल्स। देन इट कम्स कि invite only auditions. Invite only auditions are much more civilized. I'm not targeting anyone, I'm not trying to hurt anyone's feeling, but invite only auditions are much better than open auditions because वहाँ पे जो पहले से ही जिनका फेस वैल्यू बना हुआ है या फिर पहले से ही किसी ने ऑडिशन दिया हुआ है और उनका ऐसा है कि ओके दिस पर्सन कैन प्ले दिस रोल, तो उनको फिर क्योंकि आपने वो लोग आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन रखते हैं, फिर वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे कि ओके यू कैन कम एंड दिस इज़ द अटायर, दिस इज़ द रोल विच वी आर ट्राइंग टू हैव और ट्राइंग टू फेच फ्रॉम यू। तो आप कोशिश करके आ सकते हो। आपको सारी चीज़ें मेल में या फिर सारी चीज़ें व्हाट्सएप में पहले ही मिल जाती है। आप आओ नहीं आओ उनका कुछ नहीं जाता है। अगर आप आए तो यू हैव टू लॉग इन एंड उसके बाद फिर देयर इज़ अ ह्यूज प्रोसेस। आई एम गोना एक्सप्लेन दिस थिंग in another video if people are interested. So for me, what my experience in invite only audition was, or invite only auditions are the best kinds of audition which I have given. वहाँ पे आपने जो गलती की है आपको पता चलता है कि आपने क्या किया है, आप कैसे सुधार सकते हो खुद को एंड मैनी मोर। वहाँ पे बहुत एक्सपीरियंस एंड बहुत इफ आई से
वर्कोहॉलिक एक्टर्स मिलते हैं आपको कंपेयर टू ओपन ऑडिशन। ओपन ऑडिशन में कोई भी जा सकता है, कोई भी। अब जैसे कोई बंदा है, वो कुछ भी कर रहा है, उसको पता चला यहाँ पे ऑडिशन है, वो खुद चला जाता है। इनफैक्ट लेट मी टेल यू ओपन ऑडिशन में, जस्ट इमेजिन ओपन ऑडिशन में इफ देयर इज अ क्राउड ऑफ 1000 पीपल, 1000 में सिर्फ 20 लोग हैं जो फिट टू रोल है। What fit to role is, like, if just imagine there is a audition of a character who is 6 feet tall, fair, handsome, muscular, confident. So it's like a ऋतिक रोशन kind of thing, ठीक है। अब अगर इस कास्टिंग हाउस ने ये ऑडिशन भेजा लाइक पब्लिक की, अब वहाँ पे अगर 1000 लोग गए तो 1000 में सिर्फ 25 या 30 लोग हैं जो उस पर्सोना को फिट कर पा रहे हैं, जो 6 फीट के है, टॉल है, मस्कुलर है, कॉन्फिडेंट है, फेयर है। बाकी सब ऐसे ही चले गए कि सिफारिश लगा लेंगे, प्लीज़ कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। ऐसी चीज़ें नहीं होती है मुंबई में, बिलीव मी। आप उनका भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप खुद का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप और उनका भी वेस्ट कर रहे हो जो जिनको रोल मिल सकती थी, बट सिर्फ आपने भीड़ बना दी तो उसकी वजह से उनको रोल नहीं मिला। तो दिस इज़ अ वेरी बैड पार्ट। अगर आप एक्टिंग करना चाहते हो तो ओनली गो जिसमें आप इनवाइट ओनली में, इट्स अगर इनवाइट ओनली में कोई 6 फीट का रोल है, अगर 5 फीट के भी किसी बंदे को बुलाया है, सो इट मीन्स दैट ठीक है, आप वो एडजस्ट कर सकते हैं, प्रोडक्शन हाउसेज वाले, आपको जाना चाहिए। बट ओपन ऑडिशंस में अगर कोई कैरेक्टर है जिस पे आप फिट नहीं कर पा रहे हो, सो प्लीज़ डोंट गो। अगर आपको जाना है आप कॉल कर दो, आप भीड़ का हिस्सा मत बनो। कुछ हासिल नहीं होने वाला है, कुछ पता नहीं चलने वाला है, कोई सिफारिश नहीं लगने वाली, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। दिस देन कम्स how to take rejections. Of course, for me, in the beginning of my days, rejection was pretty hard, very hard, to be honest. मैं नहीं ले पाता था, but now I'm very fluent. Now I'm very happy that if I get rejected, I'm very happy. You know why? Because there were times when I was 2 days before making a very good agreement, और उससे पहले मेरे को मूवी से निकाल दिया जाता था, सीरीज से निकाल दिया जाता था, टीवी सीरियल से निकाल दिया जाता था, just because I don't have a, there were many reasons. They asked for favors, they asked for different kinds of things. मेरे followers ज़्यादा नहीं है, I can't bring so many people to the auditorium or to the theater, because I don't have a huge fan following. It's like let me explain two situations. Let me explain two. There were many, but let me explain only two big situations. The first one was, I can't take any name, I can't take the production house name, the movie name, the guy's name, anything, because it's a very sensitive matter. First situation में क्या हुआ था, I was selected, everything was fixed, I was very happy because I was selected, I was finalized. But then किसी एक ऐसे बंदे को उस रोल के लिए ले लिया गया who was an influencer on Instagram. उसके I think मिलियंस या फिर 500,000 सब्सक्राइबर थे, एंड इनको लगा इट वॉज नॉट अ वेरी ह्यूज प्रोजेक्ट। आई थिंक वो किसी एड का ही प्रोजेक्ट था या फिर वो किसी शॉर्ट फिल्म का ही प्रोजेक्ट था, इट वॉज एन शॉर्ट प्रोजेक्ट। तो उसमें उसको ले लिया गया जस्ट बिकॉज दैट पर्सन विल अट्रैक्ट मोर ऑडियंस, बिकॉज ही ऑल्सो हैव अ फेस वैल्यू विच आई लैक। उसके वजह से even though I don't know if I'm worthy enough compared to them, but even though if I'm fixed, even though if everything is done, it's not a good way कि वो मेरे को निकाल के उनको रख ले just because he's what do you say, he's famous, he's already famous, yeah, he's already famous, this could be a good word, he's already famous. So प्रोडक्शन हाउसेस को लगा कि इसको अगर लेंगे तो इनके जो फैंस होंगे वो हमें ज़्यादा वो देंगे, engagement, than me, of course, who doesn't have a fan. That is the whole reason why I started a YouTube video to explain my stuff, and this is the thing which I love to do. अगर मेरे कुछ fan followings हो जाते हैं, then I'll also get some roles, so who knows. And the second time when I got removed from a show, it was a TV serial, and उस TV serial में what happened was I was selected. It was a Delhi वो होने वाला TV serial. उसमें I'm not sure if it was a production वाला guy, the person who was producing the whole series, उसका कोई भतीजा या उसका कोई, I don't know, but that guy was related to him, the production वाला guy, he was related to him. And क्योंकि उनके रिलेटिव ने फंड किया है पूरे के पूरे सीरियल को, तो उनके सिफारिश पे उसको रख ली गई, एंड आई हैव टू बी out from that serial.
और मेरे को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिली। मैंने बहुत सिफारिश की कि अच्छा ठीक है ये रोल नहीं है तो कोई और रोल में मेरे को एडजस्ट कर लो, बट इट वाज लाइक कंप्लीट ना, बिकॉज I'm also gonna come to a second part. So लोगों ने निकाल दिया. So these two are the major and big times where I have to suffer more than a rejection, because if I lack something and I'm being rejected, I know where to find myself and where to evolve. Because ठीक है अगर मैं ये इस तरीके का एक्टिंग नहीं कर पा रहा हूँ, then I'll know I have to perfect this thing. But अगर ऐसी चीज़ें हो रही है, then I don't know how to take these kinds of things. Then these two were my personal stories. And if I'll say one more thing, तो फॉर मी आप क्या होता है ना कि अगर आप स्टार्ट करते हो, एंड फॉर मी लेट मी शेयर दिस थिंग, अगर आप स्टार्ट करते हो एंड इफ़ यू आर फिट टू रोल एंड सब कुछ हो जाता है, देन जो आपके को वर्कर्स होते हैं हु ऑलरेडी हैव अ मोर ग्रास्प टू द इंडस्ट्री देन यू, जिनका पहले से ही कनेक्शंस है या फिर गॉडफादर है या फिर वैसा, सॉरी, या फिर वैसा कुछ है, तो वो क्या करते हैं, अगर वो इनसिक्योर है आपके लुक्स को लेके, आपके टैलेंट को लेके, तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि आप ना दिखो उनके साथ. इट्स लाइक इफ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ धुरंधर, जो अभी नई मूवी आई है. इट्स अ वेरी गुड मूवी, इट्स अ वेरी वेरी फैंटास्टिक मूवी. बट इफ़ यूल से द मेन कैरेक्टर इज़ रणवीर सिंह, बट रणवीर सिंह से ज़्यादा अक्षय खन्ना की बात हो रही है. सो दिस गोना क्रिएट एन इनसिक्योरिटी इन रणवीर सिंह की यार मेरी मूवी में मेरे से ज़्यादा इससे बात हो रही है. सो वेरी देर आर सो मेनी पीपल हु प्रिवेंट दीज काइंड ऑफ थिंग्स बिफोर इवन मेकिंग. उनको लगता है कि अरे यार ये तो बहुत अच्छा कर रहा है, हो सकता है कि मेरी जो फैंस है वो उसकी हो जाएगी. If I'll take another example, Dar. If you remember, Dar is a movie of Shah Rukh Khan. I forgot the name of the actress, and Bobby Deol. No, Sunny Deol. My bad. Sunny Deol. Shah Rukh Khan and Sunny Deol. Dar movie में जितने लोग भी movie देखने गए थे, there was no person Shah Rukh Khan के fan. Everybody was Sunny Deol के fan. But जब movie खत्म हुई तो every Sunny Deol fan कन्वर्टेड देमसेल्फ टू बी अ शाहरुख खान फैन. वहाँ से शाहरुख खान की फ्रेंचाइजी स्टार्ट हुई. और देयर वाज एक बार इस इंडस्ट्री ने एक कॉम्बिनर को चांस दे के देख लिया है. नाउ ही इज़ अ किंग, ही इज़ किंग ऑफ बॉलीवुड. अब ये लोग प्रॉपर प्रिवेंट करते हैं कि कोई भी न्यू कमर है जिसके पास एक्टिंग है, स्किल है, लुक्स है, उनको वो स्टार्टिंग स्टेज से ही तोड़ने लगते हैं कि वो ऊपर पहुंच ही नहीं पाए. दीज आर द थिंग्स विच आई हैव फेस्ड. आई डोंट नो इफ आई एम that much of a threat to Bollywood or not, but these kinds of things which I have experienced, and I hope you guys doesn't experience anything which I have experienced. And I haven't quit. I'm gonna try my best to act in Bollywood. Agar nahi hua to I'm gonna try to go even further. But these are the process. If anyone have any kinds of question, you guys can leave in the comment, or if you want to talk to me one on one, or if you have a session, it's completely free. I'm a very beginner YouTuber. I have my time. I can talk to you guys. You can get on my Instagram. You can follow me there too if you want. Thank you so much for listening to my video till here. Bye bye.